lecture for electrostatics. Firstly, we will be covering the electric charges and fields. So before starting the chapter, let us understand some terms. 1 EMU is equals to 10 Coulomb. 1 Faraday is equals to 96500 Coulomb. 1 Coulomb is equals to 3 into 10 to the power 9 Franklin, and 3 into 10 to the power 9 Stat Coulomb, and 3 into 10 to the power 9 ESU, electrostatic unit. So as we know, linear charge density is lambda. Lambda is equals to dq by dl, charge per unit length. Sigma is surface charge density. It is dq by dl is surface charge density, and rho, that is volume charge density, dq by dv. Here's an important line from NCERT: charge cannot exist without mass, whereas mass can exist without the charge. Because we have seen many neutral species which having mass but do not have a charge, but there is no species that have a charge but do not have the mass. Even we talk about the neutron, which do not have any charge, but it do have the mass. So charge cannot exist without mass. Now, talking about the properties of charge, there is quantization of charge, additive nature of charges. This is quantization of charge. Q is equals to NE. The charge is always transmitted in the packets, in the integral multiple of electron. Charge is invariant. It is independent of the speed and the observer. Whereas mass जो होता है वो depends on the speed of the observer. If we talk about mass is m0 1 upon 1 minus v square upon c square. Let's talk about some charge and mass relations of different species. Talking about proton, deuteron, and alpha particle. So mass of the proton is mp. Charge of the proton is E. It's positive E. Talking about deuteron is 1h2. It is having 2 protons, and charge is E. And alpha particle for mass of proton and 2 of electron. It is 2He4, helium nucleus. Now let's talk about electroscope. Electroscope experiment was done to check the magnitude of the charges. So angle of divergence of leaves in case of electroscope is directly proportional to magnitude of charge. जितना ज़्यादा डाइवर्ज होगा इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, क्योंकि उतना ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा. Let's talk about the main important law of electrostatics, that is Coulomb's law. Coulomb's law gives us the relation of force and charges and radius. It tells force is directly proportional to multiple of charges and inversely proportional to square of the radius, following the inverse square law. So writing it in terms of with the constant k q1 q2 upon r square, k is 1 upon 4 pi epsilon naught. Its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. You can check the units and dimensions.
टू चेक द यूनिट ऑफ के हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर, दैट इज फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू रेडियस स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज कूलॉम्ब स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर. इन वैक्यूम और एयर E naught at epsilon naught is 1. Epsilon naught is basically permittivity of free space. Whereas mu naught is permeability of free space. Value of epsilon naught we can calculate. It is 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square, because K is inverse of epsilon naught. When we talk about any medium, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे वेरी करेगा, F डैश इज इक्वल्स टू F इन वैक्यूम अपॉन epsilon r. F dash is the net force on the charge, epsilon r is the relative permittivity. We can say the relative permittivity or the dielectric constant. So moving on to the equilibrium of charges. There is a short trick for this. अगर we are having the like charges, अगर like charges है और Q1 जो है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है Q2 के मैग्नीट्यूड से, तो जो डिस्टेंस होगा नियर द स्मॉलर चार्ज, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज, सो डिस्टेंस विल बी d अपॉन √n + 1. सो x डिस्टेंस इज नियर द स्मॉलर चार्ज, और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q2 अपॉन Q1, जो बड़ा है अपॉन जो छोटा है, सो n वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. फॉर द अनलाइक चार्जेस, अगर चार्जेस अनलाइक है तो हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, तो d अपॉन √n-1. इट्स सो सिंपल. अनलाइक चार्जेस है तो नेगेटिव आ जाएगा, जो सेम चार्जेस है लाइक चार्जेस है तो प्लस आ जाएगा. Here also n is equal to Q2 upon Q1. For maximum force, many times question is asked कि maximum force चाहिए हमें, उसके लिए Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए. So for maximum force Q1 should be equal to Q2 should be equal to Q by 2. They should be equal in 50% of the charge. Now talking about force on second body due to 1 in vector form, we can say K, Q1, Q2. We only take the magnitude of charges, not the signs of the charges for calculation of the forces. R21 vector is the whole square, and we will multiply this whole value with the unit vector of R21. Calculating R21 vector, it is R2 vector minus R1 vector. This is basic vector calculations. You can solve it. Unit vector is the magnitude of vector. Unit vector is the R vector upon magnitude of the R vector. So moving on to the pendulum problems. Pendulum problems में क्या होता है, एक pendulum जो है, there are two charges tied here. There are two charges Q1 and Q2 tied here. Q1 having the mass m1, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g लगेगा, Q2 को ग्रेविटेशनल फोर्स will be m2g. They are tied at an angle θ1 and θ2. तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन फोर्स लग रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों चार्जेस पे सेम लगेगा, एंड बिकॉज द चार्जेस आर ऑफ सेम चार्ज, सो दे विल
रिपेल ईच अदर। तो एफ फोर्स Q1 पे लगेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट और Q2 में लगेगा टूवर्ड्स द राइट। सो कैलकुलेटिंग द tan theta here, tan theta is perpendicular upon base. So here the perpendicular is F force and base is mg force. So tan theta 1 is equals to F upon m1g. Similarly tan theta 2 is equals to F upon m2g. So we can derive a relation here. Tan theta is inversely proportional to mass if the forces are same. Now going on to the electric field. Electric field is basically force vector upon Q naught. So magnitude electric field का जो unit आएगा वो कैसे आएगा? Because force is Newton and charge is Coulomb. तो that is Newton per Coulomb. आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो उसमें फील्ड जो होगी रेडियली आउटवर्ड होगी। रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होती है रेडियली आउटवर्ड होती है। टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, उसमें फील्ड जो होगी रेडियली इनवर्ड्स होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। if particle is released from rest, many questions you will see particle rest से release हो रहा है तो उसका acceleration कितना हो जाएगा QE/m, because F is equals to QE and F is equals to ma is equals to QE, तो A is equals to QE/m। और यहाँ से हमसे टाइम पूछ सकता है। So to calculate the time we can use V is equals to U plus AT, use 0, तो time is equals to V upon A and time can be V upon A। और we can say time is equals to under the 2 md by QE। Q is the force and m is the mass and d is the distance। काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी Q इंटू E इंटू D। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है ऑलवेज एंटर एंड एग्जिट परपेंडिकुलरली इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज 0। मटेरियल ऑफ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगी हमेशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगी कंडक्टर के सरफेस से। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एज वी टॉक, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी शुड इक्वल टू वर्क डन, तो काइनेटिक एनर्जी शुड इक्वल टू वर्क डन QE इंटू एक्स। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे √2 QEx अपॉन m। सो यहाँ से हम देख सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, अंडर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। First we are talking about line charge। लाइन चार्ज में क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू dQ upon dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लाइन चार्ज में चेक करें इन द x डायरेक्शन, इट विल बी k लैम्डा बाय r sin θ1 प्लस sin θ2। सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k लैम्डा बाय r cos θ1 माइनस cos θ2।
this is our line charge. लैम्डा विल बी गिवन फॉर द लाइन चार्ज और यहाँ से हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है इन द एक्स डायरेक्शन ई एक्स। तो यहाँ से जो एंगल बना रही है θ1 है और दिस इज θ2। टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट और लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट और लॉन्ग वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर। दिस इज़ वेरी इजी फॉर्मूला टू रिमेंबर। और इसको ओपन अप करेंगे तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट 2k लैम्डा बाय आर। इनफाइनाइट वायर के केस में 2k लैम्डा बाय आर, सेमी इनफाइनाइट के केस में अंडर रूट 2k लैम्डा बाय आर। सेमी सर्किल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल 2k लैम्डा बाय आर, सिमिलर टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्वाड्रेंट के केस में सिमिलर टू द सेमी इनफाइनाइट वायर, रूट 2k लैम्डा बाय आर। एंड इफ वी टॉक अबाउट आर्क के क्वेश्चन बहुत आता है एंड इनफैक्ट डोंट रिमेंबर द सेमी सर्किल और क्वाड्रेंट फार्मूला, यू शुड रिमेंबर द आर्क फार्मूला। आर्क में क्या होता है, ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर। फॉर सेमी सर्किल थीटा इज 180 डिग्री और वी कैन से थीटा इज पाई। सो साइन 90 इज 1। सो सेमी सर्किल में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर। इन केस ऑफ क्वाड्रेंट थीटा इज 90 डिग्री, so sin 45 is equal to 1 by root 2, so under root 2k lambda by r comes out. Moving on to the hollow sphere or spherical shell or conducting sphere. So hollow sphere, spherical shell or conducting sphere. They do not have any charge on the inside of the conductor. So outside में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें, that is very obvious, E is equal to kq upon r square. R is the distance from the center of the circuit. Inside electric field is equal to 0 because there is no charge. So if we plot the graph between electric field and radius, there is no electric field inside the conductor, and at the surface electric field is equal to E is equal to kq upon capital R square. Capital R is the radius and outside the sphere E is inversely proportional to small r square. So talking about solid sphere, solid sphere is non-conducting. So it has charge inside the sphere also. E outside की बात करें तो सेम ही आएगा kq upon small r square. Inside की बात करें तो E is equal to kqr upon capital R cube. Small r is the distance from the center, capital R is the radius of the circle, radius of the sphere. इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिग्मा r upon E3 epsilon naught. Sigma is basically q upon r square and 1 r is kept same, and opening the 1 upon 4 pi epsilon naught and calculating it comes sigma r upon 3 epsilon naught. इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हैं सॉलिड स्फीयर में। अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड देन इट गेट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. It gets inversely proportional to r square. So this graph is obtained in case of solid sphere. Talking about electric field due to the ring. रिंग के केस में बात करें तो एक्सिस पे और इक्वेटोरियल प्लेन पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस. एक्सिस पे E इज इक्वल टू KQ(x) अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. इसका ग्राफ देखेंगे तो इट कम्स आउट लाइक दिस.
टर्म्स ऑफ R by root 2. So we know time period is equal to 2 pi by omega. तो SHM हो रहा है, अगर ऑसिलेशन हो रहा है किसी चार्ज का, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 pi by ओमेगा से. वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस. कम्स आउट टू बी 8 pi q एप्सिलॉन नॉट m a q अपॉन q नॉट कैपिटल Q. ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f. और वी कैन से ओमेगा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी से. वेलोसिटी हमने पहले कैलकुलेट करना सीखा था. एंड देन वेलोसिटी से हम जो है ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे. और वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट फ्रॉम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना SHM के केस में. सो ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें, तो हम एक्सेलरेशन बाय एक्स कर लेंगे. एंड एक्सेलरेशन वी कैन कैलकुलेट बाय QE by L and keep it in the formula. तो हमें मिल जाएगा. Now talking about electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल इज इक्वल्स टू Q इंटू L, चार्ज इंटू लेंथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट अगर हम बात करें तो दैट इज़ 2 kp अपॉन r3. दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल. और इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस kp अपॉन r3. दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल. जनरल पॉइंट पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तो आ जाएगी kp अपॉन r3 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. cos square theta plus 1. Now talking about torque on the dipole. We forgot to mention one formula in the solid sphere. Solid sphere में आउट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी that is, or just outside the surface, that is kq upon capital R square. We can write it as sigma upon epsilon naught. टॉर्क ऑन द डाइपोल. डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. P वेक्टर इज आवर डाइपोल मोमेंट एंड E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टाउ वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, इसका मैग्नीट्यूड, तो दैट इज PE sin थीटा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है तो दैट ओपन्स इनटू PE sin थीटा. मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम टॉर्क कम्स व्हेन sin थीटा वैल्यू इज मैक्सिमम. sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है. एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे नेट फोर्स जो होता है 0 होता है. तो इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अगर हम बात करें तो sin 0 इज 0, तो टॉर्क हमारा 0 आएगा. दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. टॉर्क क्या करता है, बेसिकली रोटेशन कॉज करता है. टॉर्क इज बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और वी कैन से दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो sin थीटा इज इक्वल टू -1. नो, 180 डिग्री के केस में sin थीटा इज अगेन इक्वल टू 0. सो टॉर्क इज इक्वल टू 0 अगेन. दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Talking about potential energy stored in an electric field in a dipole. तो डाइपोल के केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो U इज
टॉर्क ज़ीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन एंड MCQ हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस लाइन कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल in non-uniform electric field is not zero, but torque may or may not be zero. Minimum potential energy कहाँ पे होगी? When the theta is 0 degree. Theta 0 degree तो cos theta is cos theta is 1. तो minimum potential energy कितनी आ जाएगी? -PE. And this is the stable equilibrium. As we had talked in torque cases कि theta is equal to 0 degree पे stable equilibrium होता है, तो यहाँ भी stable equilibrium. Maximum potential energy कितनी मिलेगी? Maximum potential energy can be प्लस PE. प्लस PE के लिए हमें थीटा की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि माइनस माइनस कैंसिल आउट टू गिव अ प्लस. तो 180 डिग्री थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड यू मैक्स आ जाएगा प्लस PE एंड दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है. स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो दिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ रिलेटेड. इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे हमेशा क्वेश्चन आ जाता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर. E vector is electric field vector, A vector is area vector. So E cos theta. Area vector is always perpendicular to the surface, and flux, electric flux is a scalar quantity, is not a vector quantity. Now talking about phi की अगर हम बात करें तो that is integral of E vector dot dA vector in case of when the electric field is non-uniform. Talking about Gauss law, गॉस ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught. Q enclosed by epsilon naught इज टोटल चार्ज जितना सरफेस के अंदर है सिर्फ उतना अपॉन epsilon naught. सो वी आर टॉकिंग अबाउट closed integral of E vector or dA vector, that is the electric flux is equal to Q enclosed upon epsilon naught. यहाँ पे हम जो चार्ज लेते हैं वो enclosed वाला लेते हैं, लेकिन जो फ्लक्स मिलता है that is due to all charges. that is चार्जेस जो आउटसाइड में है उनकी वजह से भी और चार्जेस जो इनसाइड है उनकी वजह से भी, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करते हैं. टॉकिंग अबाउट सिंपल पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनमें पोलैरिटी डेवलप होती है. पोलैरिटी में भी ड्यू टू द चार्ज डिफरेंस दे हैव द परमानेंट डायपोल मूवमेंट. बिकॉज इनके पास चार्ज डेवलप हो जाता है दैट कॉज द डायपोल मूवमेंट even in the absence of electric field. So this was all about electric charges and field chapter. I hope you understand this. We have covered this video in only 30 minutes. So these are all the important formulas which are required for you to crack your RE-NEET 2026. I hope you all understand all the formulas. If you have any query, ask me in the comment section. I will be very happy to answer you. So okay, bye bye, stay tuned, have a great day.